we discuss about the company database as we already discussed in our previous video. So how we create the company database? So let's go guys and we create. So first of all we create a database. तो हमने लिख दिया create database company. Okay guys, and then we execute it. So as you see, our create database is get executed. We use our company database. So I write company, and our company database is under use. Now I can create my table, create table which is employee. Okay, as you see in our table columns there is a employee. Okay, and in that employee we already know about the format of creating table, like employee id, which is our int and which is our primary id. ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे प्राइमरी की दे देंगे. ठीक है, so we give a primary key. Wait a minute. Okay guys, so we gives a primary key, and after primary key there is our first name which is varchar, and हमने दे दिया लास्ट नेम varchar. Okay guys, then our last name, after that there is a column of birth date, and यहाँ पे हम डेट देंगे. आफ्टर दिस देर इज अ सेक्स, और यहाँ पे हम varchar देंगे 1. आफ्टर दिस देर इज अ कॉलम कॉल्ड सैलरी. ओके वेट अ मिनट. ठीक है, सैलरी, and in salary we have given a value int. After int there is a super id. Super id I already give it as a int, and there is a branch id. As you see there is a branch id. Okay guys, so I give a branch id which is also int, and after this I close it like this and I execute it, and as you see it get executed. Okay, and after executing this our table is created. Now I create, so first of all we creating all the schemas, मतलब we create all the tables. So next I have to create a table. Which table? I have to create a table branch. So I mention a branch, and in the branch there is a branch id. ठीक है, as you see there is our branch id. So here is a branch id, and the branch id is in int as well as primary key. Okay, and after primary key there is a branch name which is varchar, and I give it 40. Okay, then manager id, and manager id is our int, and after manager id there is a manager start date, and start date is our date. And after all this
what we can do, we make our foreign keys. ठीक है, as you see manager is our foreign key, तो I make a foreign key foreign key mgr ओके। मैनेजर फॉरेन रेफरेंस हमने लिया, रेफरेंसेस कहाँ से, एम्प्लॉय आईडी में से। तो रेफरेंसेस हम कहाँ से ले रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल में से। तो पहले मैं एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में से एम्प्लॉय इम्प आईडी से हमने क्या किया है, हमने रेफरेंस लिया है। ठीक है, और इस पे मैंने क्या लिखा, ऑन डिलीट सेट नल। Okay guys, so basically I executed the code and our code is getting executed, and after this what we can do, we just making our starting table like as you see in our table the green shows the foreign keys, and super id and branch id is also a foreign key. Basically I have to create a branch id, that's why I not mention it in the upper section. So I use alter command here, alter table employee, and then add foreign key in branch id. Okay, references branch, and that is branch id. ओके, रेफरेंस में ब्रांच और ब्रांच आईडी हमने दे दिया, और हमने क्या लिख दिया, ऑन डिलीट सेट नल। ओके गाइस, और ये हमने क्या करा, ये हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, और ये हमारा जो है एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या करा, इसी तरीके से हमने जो है अपनी सुपर आईडी को भी दे दिया है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय फॉर ऐड फॉरेन की किसमें, यहाँ पे हमें अब किसमें करनी है, सुपर आईडी में। एंड रेफरेंस हमने कहाँ का दिया है, रेफरेंस हमने, अब हम इसमें हम रेफरेंस देंगे एम्प्लॉय टेबल का, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गाइस IMP ID डाल देंगे, ऑन डिलीट सेट नल। ओके, देन आई एग्जीक्यूटेड इट एंड इट ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो अब हमारी क्या हो गई, फॉरेन कीज़ जो है ऐड ऑन हो गई हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आगे जो है क्रिएट करेंगे अपनी क्लाइंट टेबल। क्लाइंट टेबल में आप देख रहे हो 3 कॉलम्स हमारा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने क्लाइंट टेबल में क्रिएट में हमने क्या करा, क्रिएट में बेसिकली हमने क्रिएट टेबल क्लाइंट, एंड क्रिएट टेबल क्लाइंट के अंदर हमें क्या करना है, सिंपली क्लाइंट आईडी देंगे हम। क्लाइंट आईडी हमारी क्या होगी, क्लाइंट आईडी हमारी इंट होगी। ठीक है, क्लाइंट आईडी इंट होगी और प्राइमरी की होगी, तो हमने जो है प्राइमरी की दे दिया। उसके अंदर हमने क्लाइंट नेम हमें देना है, तो क्लाइंट नेम हमने varchar 40 दे दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने जो है ब्रांच आईडी दे दी अपनी। ब्रांच आईडी हमारी क्या होगी, ब्रांच आईडी हमारी इंट होगी, और ब्रांच आईडी देने के बाद अब हमने क्या दिया, अपने फॉरेन की दी। ठीक है, फॉरेन की में हम अपनी ब्रांच आईडी देंगे। ओके, और इसमें हम अपना रेफरेंस देंगे, किससे, रेफरेंस देंगे अपनी ब्रांच की ब्रांच आईडी से। इससे हमने रेफरेंस दिया और हमने डाला ऑन डिलीट सेट नल। ओके गाइस, और ये हमने क्लोज करके नाउ अब हमारा कौन सी बची है, अब हमारी जो टेबल बची है इज़ लाइक
हमने क्लाइंट बना लिया, अब हमें वर्क्स विद बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने क्रिएट करी अपनी टेबल और हमने जो है एक वर्क्स विद की टेबल बनाई। ठीक है, वर्क्स विद, एंड वर्क्स विद में हम अपना क्या करेंगे, सिंपली IMPID इंट, जो कि हमारी प्राइमरी की बनेगी, देन हमारी क्लाइंट आईडी। ठीक है, ये भी हमारी इंट होएगी, और मतलब ये दोनों ही हमारी प्राइमरी की हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक शॉर्ट वो कर दूंगा। ठीक है, दोनों को एक साथ ही मैं प्राइमरी की बना दूंगा, और यहाँ पे हमारा क्या होएगा, टोटल सेल्स, जो कि हमारा इंट आने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी प्राइमरी की यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा एज अवर IMPID एंड क्लाइंट आईडी। ओके गाइस, तो ये हमने अपनी प्राइमरी की डिक्लेयर करी। प्राइमरी की के बाद हमने क्या करी, अपनी फॉरेन की। फॉरेन की यहाँ पे क्या होंगी, फॉरेन की हमारी दोनों होंगी। ठीक है, तो फॉरेन की हमारी IMPID, ठीक है, जो कि रेफरेंस रखती है किससे, ये जो कि रेफरेंस रखती है एम्प्लॉय टेबल से। ओके, IMPID। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना है, ऑन डिलीट कास्केड, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अंतर क्या है थोड़ा सा। ठीक है, ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट सेट नल में। नाउ आई गिव फॉरेन की क्लाइंट आईडी रेफरेंसेस, और रेफरेंस हमें किससे देना है, अपने क्लाइंट वाले से देना है। वहाँ पे हमने ऑलरेडी क्लाइंट आईडी अपनी डिक्लेयर कर रखी है, तो ऑन डिलीट कास्केड। ठीक है, तो ये हमने जो है इतना काम कर दिया है, और इतना काम करने के बाद हमने क्या करा, हमने एग्जीक्यूट करा, एंड एज यू सी हमारी जो है ये जो है हमारी क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट गए, नेक्स्ट पे ये क्या हो गया, रुकिए, ठीक है, नेक्स्ट हमारी लास्ट टेबल बची जो कि हमारी सप्लायर की। तो हमने सप्लायर की टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल, ब्रांच। ठीक है, क्रिएट टेबल ब्रांच सप्लायर। ओके गाइस, तो ब्रांच सप्लायर की हमने जो है अपनी टेबल क्रिएट करी। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने ब्रांच आईडी दी अपनी। ठीक है, ब्रांच आईडी हमारी इंट हुई, देन हमने अपना सप्लायर नेम दिया, जो कि हमारा varchar 40, एंड लास्ट में हमने इसे क्या दी, सप्लाई टाइप दी। सप्लाई टाइप वो भी varchar 40 होगी हमारी। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे प्राइमरी की बनाई अपनी, और यहाँ पे प्राइमरी की हमारी कौन कौन सी होगी, एक तो ब्रांच आईडी, नहीं ब्रांच आईडी हमारी प्राइमरी की नहीं हो सकती। जैसे कि आपने देखा कि यार लेकिन पर्टिकुलर उसकी तो एक पर्टिकुलर ब्रांच आईडी ही होगी ना। जैसे यहाँ पे हमारी ब्रांच कहते हैं हम प्राइमरी की को, ठीक है, प्राइमरी की हमारी यहाँ पे क्या हुई, प्राइमरी की हमारी हुई ब्रांच आईडी और हमारा सप्लायर नेम। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करी, इसके बाद हमने अपनी फॉरेन की बनाई, और फॉरेन की हमारी यहाँ पे क्या होगी, फॉरेन की हमारी हुई
ब्रांच आईडी जो कि रेफरेंस करेगी हमारे ब्रांच से ब्रांच आईडी का ऑन डिलीट कास्केड पर। और ये हमने क्या करा, ये हमने रुकिए थोड़ा सा, ओके ब्रांच आई कर दिया मैंने गलती से, ब्रांच आईडी हो गई है। ठीक है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं और ये अब हमारा जो है सही एग्जीक्यूट हो गया है। तो हमने क्या करा है, हमने जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने क्या करा, हमने इंसर्ट हम कर चुके हैं। अब बात आती है कि भाई इंसर्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने में भी इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम जो है 1 बाय 1 एक लाइन वाइज हम इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है किसी भी कंपनी में, सबसे पहले उसका आएगा कॉर्पोरेट। ठीक है, कॉर्पोरेट क्यों आएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट की डिटेल्स इसलिए इंसर्ट करनी ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे कॉर्पोरेट को हमें जो है अपने ब्रांच में भी इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने कॉर्पोरेट को इंसर्ट करा, इंसर्ट एम्प्लॉय। ठीक है, इंसर्ट एम्प्लॉय में हमने वैल्यूज़ डाली जो उसकी वैल्यूज़ थी। ठीक है, जो टेबल में हमें शो करी गई हैं, टेबल के हिसाब से चलना है यार। और हमने जो है आगे जो है उसके नल डाल दिया क्योंकि ये दो है हमारी फॉरेन की, और अभी तो फॉरेन की हम किसी से लिंक कर ही नहीं सकते क्योंकि अभी तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में उसे नल करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो है एरर दे देगा। ठीक है, तो ये हमने एग्जीक्यूट करा, तो ये हमारा जो है एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद हमने ब्रांच में, अब हमारा जब वो एम्प्लॉय बन चुका है तो अब हम ब्रांच में उसे कॉर्पोरेट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ब्रांच में हमने उसकी ब्रांच आईडी दे दी, कॉर्पोरेट बता दिया उसे, और ठीक है, और यहाँ पे हमने उसे ऐड ऑन कर दिया। ये हमारा ब्रांच में ऐड हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय में हमने उसे नल दिया अभी, लेकिन इसकी अब हमारे पास ब्रांच आईडी तो आ गई है क्योंकि पहले ये ब्रांच में नहीं था लेकिन अभी ब्रांच में है। तो अब हमने क्या करा, सेट कर दी ब्रांच आईडी 1 जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 100। ठीक है गाइस, और ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने जो है अपने 101 को ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, जिसमें 100 था। ठीक है, जिसमें 100 था हमने उसमें जो है ऐड ऑन कर दिया अपने, और ये हमारी जो है ऐड ऑन हुई। ठीक है गाइस, तो इतना हमारा काम खत्म हुआ कॉर्पोरेट वाले का। कॉर्पोरेट वाले के बाद हम उससे नीचे वाली पोस्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमने उसका एम्प्लॉय बनाया क्योंकि वो एम्प्लॉय बनाना ज़रूरी है कि भाई वो हमारा एम्प्लॉय है या नहीं है, वो यहाँ पे बनाना ज़रूरी है। तो ये हमने एम्प्लॉय बनाया, एम्प्लॉय बन गया। देन हमने उसे ब्रांच में इंसर्ट करा, उसकी ब्रांच आईडी दे दी हमने, और फिर से सिमिलरली हमने उसकी ब्रांच आईडी सेट करी एम्प्लॉय टेबल में। ओके गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो जो हम कर रहे हैं ना वो सारी चीज़ें नीचे हमारी इफेक्ट होती हुई दिख रही हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने जो 102 से लिंक थे वो सारे के सारे एक एक करके क्रिएट कर लिए। तो ये इसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, देन इसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, देन इसे मैंने एग्जीक्यूट, कैली को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, स्टैनली को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। देन हमारा इतना काम होने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, इतना काम होने के बाद हमारा जो है नेक्स्ट वाले पे हम गए, और ये नेक्स्ट वाले को फिर से वैसे ही नल क्रिएट करा हमने सबसे पहले एम्प्लॉय में। अब इन्होंने क्या कि देयर इज़ अ, अच्छा ठीक है, ओके, तो ये हमारा जो है सही से हमारा जो है क्रिएट हो गया। अब फिर हमने इसको सेट कर दिया जैसे हमने ब्रांच आईडी बनाई।
तो एक पर्टिकुलरली सर्कुलर वाइज हमें चलना पड़ेगा। जब हमारी फॉरेन की होती है तो हमें ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है गाइस, और ये हमारे सारे इंसर्ट हो गए। अब हमें बस कुछ नहीं, अब हमें 1 बाय 1 जो है इन सबको भी एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा 1 बाय 1 हम जो है अपने इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ, ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ, देन ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ, एंड ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया गाइस। तो हमारा ब्रांच सप्लायर बन गई है। ठीक है, अब हम क्लाइंट पे आ गए। अब हमें अपने क्लाइंट को बनाना है, और ये हमारे सारे के सारे क्लाइंट्स हैं, और इनको मैंने जो है एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये सारे हमारे जो है 1 बाय 1 इंसर्ट हो गए। इसके बाद मैंने जो है वर्क्स विद वाले को इंसर्ट कर दिया, तो ये हमारे के सारे वर्क्स विद वाले जो है इंसर्ट हो गए। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने अपना कंपनी का डाटाबेस क्रिएट कर लिया है। अब उस पर हम कैसे कैसे क्वेरीज करेंगे वो मैं जो है अगली वीडियो में बताऊंगा।